السلام علیکم جی، پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں سنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سروردی صاحب، سابق سفیر جاوید ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. جاوید صاحب آپ کا بھی شکریہ، مزمل صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، صورتحال ایک بار پھر سے کشیدہ ہو چکی ہے اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں امریکہ نے بھی ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اور پیس اگریمنٹ اب فی الحال خطرے میں پڑ چکا ہے، کیونکہ جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ تشدد کا مقابلہ تشدد سے ہی کیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے جاوید صاحب، صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی، میری امید تو ابھی بھی قائم ہے. دیکھیے کہ اوور آل اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں گے تو ہم نے اس موضوع پہ کافی دفعہ بات کی آپ کے پروگرام میں، مزمل صاحب کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی، اور وہ یہی ہم مختلف کبھی اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. ہمیں یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ ایگریمنٹ یا ایم او یو ہوگا، اور وہ ہوا. اور اس کے ہونے کے بعد آف کورس پہلے کچھ دن تو بالکل مثبت اسٹیٹمنٹس رہی ہیں، لیکن ایک آدھ کچھ اس قسم کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں. انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں ابھی بھی ڈسپونڈنٹ نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اوور آل جو ہے حالات دوبارہ سے کشیدگی کی طرف بڑھنے والے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا واقعہ ہوا ہو، اور اس کو حوالے سے جب بات اٹیک ایک طرف سے ہوتا ہے تو اس کا جواب تو آتا ہے. اگر ایران کرے گا تو امریکہ بھی اس کو جواب دے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اوور آل جو سچویشن ہے وہ نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے. اگر آپ اس کو وائڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو ایون لیبنان کے اندر جو مذاکراتی عمل کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان اور لیبنان گورنمنٹ کے درمیان ہمیشہ جو ہم بات کرتے آئے ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی پریزنس کو ہم تو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے. تو اس حوالے سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اگر آپ اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو چیزیں اتنی کشیدہ نظر نہیں آئیں گی. یہ انسیڈنٹ ضرور ہوا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا اور اوور آل سچویشن جو ہے وہ ابھی بھی نارملسی کی طرف انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. ہو سکتا ہے ٹیتھنگ پرابلمز آئیں کچھ تھوڑے بہت، لیکن میں جہاں تک میری بات بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں سے اور جو میرا اپنا تجزیہ بھی ہے وہ یہی ہے کہ معاملات فی الحال جو ہیں وہ الحمدللہ سٹیبل ہیں اور سٹیبل ہی رہیں گے. نہیں، پر جی سی سی کا جو اعلامیہ آیا مارکو روبیو کے بعد، مارکو روبیو صاحب کا جی سی سی کا دورہ تھا، اور اس کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے حالات کو زیادہ کشیدہ کیا ہے؟ مزمل صاحب، میری نظر میں تو جو اعلامیہ آیا ہے وہ بالکل ریئلسٹک ہے، کیونکہ دیکھیے یہ چیز تو دنیا کے تمام ممالک، کوئی بھی جو شخص ہوگا جو کہ ریشنل ہوگا اور آبجیکٹو ہوگا وہ آپ کو یہی کہے گا کہ دیکھیے جو انٹرنیشنل واٹر ویز ہے ان کی رائٹ آف نیویگیشن جو ہے وہ تو انشرائنڈ ہے انٹرنیشنل لا میں. تو اگر کوئی ملک یا کوئی اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے، اس پہ ٹول لگائیں گے، تو یہ تو نامناسب بات ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو اس طرح کی ڈیمانڈز کرنی چاہیے یا وہ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایسے کہتا ہو، کچھ پوسچرنگ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈپلومیسی میں کہ آپ پبلکلی جو پوزیشن لیتے ہیں وہ کوئی اور ہوتی ہے. اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو آپ سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ مذاکراتی میز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کی پوزیشن فرق ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 60 دنوں کا جو ایم او یو میں انہوں نے یہ جب کہہ دیا ہے کہ ان 60 دنوں میں یہ ٹول نہیں ہوگا، کنٹرول نہیں ہوگا، تو پھر بعد میں کیوں ہوگا؟ یہ مطلب یہ تو اگر میں آبنائے ہرمز کی بات کروں تو اس کے 3 واٹر ویز اس کے اندر بنتے ہیں. ایک عمان والی سائٹ کا ہے، ایک سینٹر میں ہے جسے آپ انٹرنیشنل واٹر وے کہہ سکتے ہیں، ایک ایران والی سائٹ کا ہے جو ایران کی سائٹ پہ بنتا ہے. جو سینٹر والی سائٹ ہے اس کے اوپر تو ابھی سب کا خیال ہے کہ مائنز ہیں اور کوئی جہاز سینٹر والی سائٹ سے نہیں گزر رہا. جو ایران والی سائڈ ہے ادھر سے ایران کہتا ہے کہ جو جہاز گزرے وہ مجھ سے پوچھ کر گزرے، میں اس کو گائیڈ کروں گا، میں اس کو میری ٹائم سیکیورٹی بھی دوں گا. اور ابھی جس جہاز پہ ڈرونز مارے ہیں وہ عمان والی سائڈ سے گزر رہا تھا. اس کا مطلب ہے ایران یہ نہیں چاہتا کہ عمان والی سائڈ سے کچھ گزرے، سینٹر سے کچھ گزرے، جو گزرے ان کی سائڈ سے گزرے اور وہ اس کو کنٹرول کرے. جو راؤٹ طے شدہ ہے. جی، لیکن دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آئی آر جی سی کے اندر کچھ ایسے عناصر ہوں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہوں. یہ ممکن ہے، میں اس چیز کو خارج از امکان نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اوور ویلمنگ انڈرسٹینڈنگ ایمرج ہوئی ہے مذاکراتی عمل کے بعد، نہ صرف ایم او یو میں وہ مینشن ہے بلکہ اگر آپ اوپر جائیں گے ایون سوئٹزرلینڈ میں اور اس کے بعد جو پس پردہ ڈسکشنز ہوئی ہیں ان تمام کے اندر یہ چیز تو بالکل واضح ہے. آپ کو یاد ہوگا ایون مارکو روبیو جب آئے ہیں تو انہوں نے بھی بالکل کلیئر کہا ہے
कि दिस इज नॉट अप फॉर डिस्कशन। यानी इंटरनेशनल वाटरवेज, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, दुनिया में आपके सामने स्ट्रेट ऑफ मलाका भी है, वहां पे भी किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें दो एलिमेंट्स हो सकती हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके तीन मुख्तलिफ जावियों से देखा जा सकता है इसको, सेंट्रल पार्ट, इरानियन पार्ट या ओमानी पार्ट। अगर आप सेंट्रल पार्ट और ओमानी पार्ट को भी एक तरफ कर लें तो फिर भी ज्यादातर हिस्सा तो फिर भी वो इंटरनेशनली हो जाएगा ना, बिकॉज ओमान तो नहीं कभी भी एग्री करेगा। आपको याद होगा पहले भी जब अगरची साहब वहां पे गए थे कुछ एक माह पहले उनसे बात करने के लिए, तो ओमान ने, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनको यही कहा था कि हम इस किस्म की कोई अरेंजमेंट में हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे कि आप जो एक इंटरनेशनल वाटरवे को रोकें। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस मसले का। अल्टीमेटली इसको इंटरनेशनल वाटरवे की तरफ ही जाना पड़ेगा, जिस तरह ये पहले था प्री वॉर कंडीशन के मुताबिक। लेकिन देखिए अभी जी एक माहौल ये भी बन रहा है कि अगर ईरान पे अभी आपने 60 दिन के लिए सैंक्शंस ख़त्म किए हैं, वो कह रहे हैं हम 60 दिन टोल नहीं लेंगे। अगर आप 10 साल के लिए सैंक्शंस ख़त्म कर दें, वो 10 साल टोल नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप कल सैंक्शंस दोबारा ऑन कर दें तो वो टोल लेना शुरू कर देंगे। तो ये सब्जेक्ट टू सैंक्शंस लग गया मुझे तो टोल, मुझे जहाँ तक समझ आता है। देखिए इसके अंदर बिल्कुल आपने सही कहा। सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि आपना हॉर्मुज या इवन इन जनरल जो जंग है, जिस तरह से आप कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम है, प्रॉक्सीज की सपोर्ट है, मिसाइल प्रोग्राम है, आपना हॉर्मुज है, ये चारों मामलात के ऊपर जो भी रिलैक्सेशन मिलेगी वो उसी सूरत में मिलेगी जब, सॉरी, ये जो तमाम मामलात के ऊपर जब ये सेटिस्फाई करेंगे यूएस को, तभी उनको मरहलावार रिलीफ मिलेगी। रिलीफ से मुराद है सैंक्शंस के ऊपर पाबंदियां उठना, रिलीफ से मुराद है उनकी तजारत के अंदर उनके ऊपर पाबंदियां उठना, इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना, और इसके साथ साथ जो इनके ऊपर बाकी यूएन के सैंक्शंस हैं और तमाम सैंक्शंस मरहलावार तौर पर कंडीशनल टू देयर सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स वो उनको रिलीज होती जाएंगी। देखिए मुझे लगता ये है मुजामिल साहब कि ईरान के अंदर जो प्रैग्मेटिस्ट सोच है, यानी जो ये समझते हैं कि 47 साल की जंग के बाद हमने कुछ हासिल नहीं किया। ऑफ कोर्स वो एक कह सकते हैं कि मिलिटरीली उन्होंने कुछ अपने आप को दिफा किया होगा, लेकिन अगर आप आम इंसान की जिंदगी को देखें वो तो नहीं बेहतर हुई। क्या इन 47 साल की जंग की हालत में वहां के तालीम के अलावा वहां पे जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं एक आम इंसान की, उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, क्या वो मुमकिन बना सके हैं इसकी वजह से? नहीं। बजूस इस चीज के कि उनके पास इतने वाफिर जखायर हैं तेल के, गैस के, उनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर की सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो अगर रिलीज कर लेते हैं तो वो कहां से कहां जा सकते हैं। पर आप एमओयू के ऊपर ही नजर डालिए तो वहां पे भी 300 बिलियन डॉलर की बात की गई है। 300 बिलियन डॉलर कोई छोटी रकम तो नहीं होती। आप देखिए पाकिस्तान यानी 5, 10, 15 बिलियन डॉलर के ऊपर हमारे जो है आईएमएफ के प्रोग्राम्स में हमको जाना पड़ता है। 300 बिलियन डॉलर की अगर उनको रिलीफ मिल रही है तो वो अपने मुल्क की तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? व्हाई डू दे वांट टू? अच्छा, लेकिन अब ये जो जीसीसी कंट्रीज के एलामिया या मार्को रूबियो का दौरा हुआ, उसके नतीजे में गल्फ की और ईरान की टेंशन मजीद बढ़ गई है। बजाय इसके कि हम कहते हैं कि गल्फ और ईरान के दरमियान बर्फ़ पिघली है, ऐसा लग रहा है कशीदगी मजीद बढ़ गई है। देखिए मुज़म्मिल साहब, मेरी रीडिंग थोड़ी सी फर्क है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस तमाम मीडिएशन के अमल में ऑफ कोर्स पाकिस्तान को खिराज तहसीन दुनिया भर से मिला, लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा कि जब से कतर इस प्रोसेस का हिस्सा बना है तो मुझे तो लगता है कि जीसीसी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, यानी जीसीसी की रिप्रेजेंटेशन है इस तमाम मीडिएशन प्रोसेस में। आपको याद होगा आपके इस प्रोग्राम में आपसे पहले भी जब बात होती रही तो हम हमेशा एक तशवीश का इजहार करते थे। हम ये कहते थे कि देखिए जिस तरह से ईरान ने हमले किए थे जीसीसी ममालिक को, अनफॉर्चुनेट थे, कंडेमेबल थे, तो इसके वजह से जब कभी कोई भी लास्टिंग सेटलमेंट होती है वो उस वक्त तक देर पा नहीं होगी जब तक कि जीसीसी शामिल हाल ना हो। तो कतर का आना उस प्रोसेस के अंदर इसी चीज का एक अंदिया था कि कतर ने उस प्रोसेस को न सिर्फ ओन किया, बल्कि आप देख रहे थे कि जब स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात हो रहे थे तो 4 झंडे लगे हुए थे, पाकिस्तान, ईरान, यूएस और कतर। तो मेरी नजर में कतर जो है वो तो जीसीसी की जो तमाम सेंटिमेंट्स है उनकी तर्जुमानी भी कर रहा है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इन तमाम से मुलाकातें भी हुई हैं मार्को रूबियो की। और मार्को रूबियो जब गए हैं वहां पे तो उन्होंने जो तमाम एमओयू के ऐसे कुछ अगर कंसर्न्स पाए जाते थे 3 ममालिक में, कुवैत, यूएई और बहरीन में, उनको भी रिलैक्स अंडरस्टैंड करवाया। और उसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि अभी आई थिंक कल यूएई के फॉरेन मिनिस्टर की अगरची साहब के साथ फोन पे भी बात हुई है। तो मुझे तो ये तमाम पॉजिटिव बातें लग रही हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी देख रहे हैं कि जो लेबनान है उसके अंदर भी ये चीज अब लोगों को समझ में आ रही है
لیکن ہمیشہ آپ کے پروگرام میں وہ کہتے تو تھے جے ڈی وین صاحب نے بھی کہا ہے کہ یو اے ای نے اور نے پاسداران انقلاب کے ساتھ ڈائریکٹ لائن اسٹیبلش کر لی ہے. یو اے کی بات تو الگ ہے, مسئلہ تو کویت اور بحرین کا زیادہ ہے, لیکن اب یہ بھی تو آج بھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سرک پر بمباری ہوئی ہے تو اس کے جواب میں ایران نے نہ یو اے ای پہ, نہ کویت پہ, نہ بحرین پر تو ابھی بمباری نہیں کی ہے. تو ایک ریسٹرینٹ آج ایران نے شو کیا ہے, لیکن کشیدگی تو اپنی جگہ موجود ہے, اور انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. جی دیکھیے, وہ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ میں اس کو ایک ریٹرک سمجھتا ہوں. کبھی کبھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ہو سکتا ہے مطلب کچھ ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہوں جو کہ ابھی بھی جارحانہ عزائم رکھتے ہوں. ایک بڑا ملک ہے, اس کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایون امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے مختلف آراء ہیں, پاکستان کے اندر بھی کسی موضوع پہ مختلف آراء ہو سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے اس وقت ایران کے اندر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو دوبارہ کشیدگی کی طرف جانا ہے یا اس میں کوئی ان کے مسئلے کا حل ہے. ایران کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جی سی ممالک کو ٹارگٹ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ کہتے تھے, آپ کے ساتھ بات ہوتی تھی جب, کہ جو پروکسیز ہیں نان سٹیٹ ایکٹرز کی سپورٹ کو بھی ایران کو دستبردار ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ آبنائے حرمت پری فیبرری پوزیشن پہ آ جائے گا؟ کیونکہ لوگوں کی رائے ہے کہ ایران اب آبنائے حرمت کو پری فیبرری پوزیشن پہ نہیں آنے دے گا. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو اس کو آنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ مسئلے کا حل کر رہے ہیں تو آپ کو تمام معاملات کو جو ہے وہ طے کرنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے پاس کوئی منطقی, لاجیکل, لیگل, انٹرنیشنل لا پر مبنی ایسا کوئی بھی دلیل ہوگی جس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے کو جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو ٹول کرے. آپ نے کہا کہ کچھ حصہ ان کے جورسڈکشن میں آتا ہوگا, لیکن وہ تو بہت محدود ہے. یعنی جب تک عمان اور انٹرنیشنل واٹر وے اس میں شامل نہیں ہوں گے, یہ آبنائے ہرمز تو الون ایران کے کنٹرول میں نہیں ہو سکتی. لیکن ابھی کالیباف صاحب مسقط گئے تھے, وہ وہاں ایک جوائنٹ کمیونک آیا جس میں یہ تھا کہ مل کر آبنائے حرمز کو کی سیکیورٹی کی جائے گی. تو عمان ایران کے ساتھ بھی مشترکہ اعلامیہ کر لیتا ہے اور جی سی سی کے ساتھ بھی مشترکہ اعلامیہ کر لیتا ہے. ہمیں مشکل پڑ جاتی ہے کہ کالیباف والا مشترکہ اعلامیہ پڑھیں یا جی سی سی والا پڑھیں عمان کا. دیکھیں اس میں دو چیزیں, دیکھیں اگر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی بات ہوتی ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی ایسا کوئی میکینزم بنا دیں جس سے وہاں کی سیکیورٹی انشورائن یعنی پروٹیکٹ ہو سکے. بیکاز کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ پائریسی بھی ہوتی ہے, کوئی پائریٹس بھی ہیں, بحری قزاق جن کو آپ کہتے ہیں, وہ بھی آ سکتے ہیں دائیں بائیں سے. تو ان کی یعنی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کوئی جوائنٹ میکینزم ایسا اگر بنے, بٹ اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ ایران کے کنٹرول میں ہو. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک کنٹرول کرے. جوائنٹ میکینزم ہو سکتا ہے, جوائنٹ میکینزم کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو اگر عمان یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی جوائنٹ میکینزم ایسا میری ٹائم بناتا ہے جس کے نتیجے میں وہاں پہ سیکیورٹی کو گارنٹی کیا جا سکتا ہے, وہاں کی شپس کی آمد و رفت کو زیادہ سہل انداز میں وہاں پہ گزرگاہ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے, تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی پرابلم ہوگا. پرابلم صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک ملک یہ کہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے اور ہماری مرضی سے وہاں لوگ جائیں گے اور وہاں پہ ہم ٹول لگائیں گے. وہ ان ایکسیپٹیبل ہے, ان ایکسیپٹیبل رہے گا اور ان ایکسیپٹیبل ہی پھر آپ کو لگتا ہے کہ مزید آگے اور امریکہ کو ایئر سٹرائکس کرنی پڑیں گی؟ یہ ایک تو کافی نہیں ہوگی, یہ ایک تو کافی نہیں ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ مزید کشیدگی کی طرف ہم بڑھیں گے مزمل صاحب. آئی ایم ویری ہوپ فل, کیونکہ اتنی بڑی پروگریس کے بعد اس کو ختم کر دینا, مطلب آئی تھنک تمام اطراف کی اس میں سب لوگ انویسٹڈ ہیں. آئی تھنک پہلے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ امن چاہتا ہے اور باقی فریق نہیں چاہتے, چاہے میڈیٹرز ہوں, چاہے وہاں کے خطے کے تمام ممالک ہوں, چاہے ایران ہو, امریکہ ہو, سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم نے پیسفلی ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا ہے. اور آئی تھنک وہ اتنے زیادہ انویسٹڈ ہیں پچھلے 4-5 سال سے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت اتار چڑھاؤ آئے, بہت ایسے معاملات سامنے آئے جس کی وجہ سے لگا ہمیں کہ ہم کشیدگی کی طرف بڑھنے والے ہیں. لیکن لوگوں نے جو ہے جتنی بھی ہمیں پارٹیز ہیں ٹو دا کانفلکٹ, انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ فوکس ان کا جو ہے وہ ڈپلومیسی کی طرف ہی رہا اور وہیں پہ رہے گا انشاءاللہ. آپ ایک چیز کو میں دوبارہ سے کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے لیبنان پہ جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے نا, وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, اس پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے. بیکاز ایک بہت بڑی جو تحفظ تھا یہاں پہ اس خطے کے لوگوں کا, وہ یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرتا ہے جو خطے کے امن کے لیے مناسب نہیں ہے. لیبنان ایک ملک ہے, اس ملک کی اسرائیل کے ساتھ کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ تو بٹوین 2 اسٹیٹس ہوتی ہیں, لیکن وہاں موجود ایک حزب اللہ جو تھی وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے اور اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کے بہاف کے اوپر نیگوشیٹ کرے. اور اس کے پیچھے پشت پناہی جو تھی
वो ईरान की थी। आपने देखा कि अभी हिजबुल्लाह पे आपसे फिर शो करेंगे अगले किसी मौके पर, ठीक है ना? देखना तो है, ठीक है, बिल्कुल ठीक अभी है। देखना होगा कि सूरत हाल जाती किस तरफ है, क्योंकि टेबल पर ईरान मौजूद जरूर है लेकिन अपने सख्त मौक़िफ़ के साथ। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका भी। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 बड़ी अहम कार्रवाइयाँ हुई हैं और फितनतुल हिंदुस्तान के 8 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया गया है। और ISPR कहती है कि इस इलाके में जो भारतीय सरपरस्ती है उसमें सरगर्म जो मज़ीद दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ भी, उनके खात्मे के लिए, उनकी क्लियरेंस के लिए भी मज़ीद ऑपरेशन जारी है। इसी पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब ओवर टू यू। सर, ये मस्तूंग और खारान का जो इलाका है ये बड़ा ट्रबलसम इलाका है और काफ़ी अरसे से यहाँ ऑपरेशन जारी है। ये अब इलाका मुकम्मल नहीं क्लियर हो पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, सना साहिबा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है खारान का और मस्तूम का इलाका, ये बहुत ट्रबल वाला एरिया है। और आपको याद है नवाब सराज रईसानी जो थे उनको भी यहाँ तकरीबन 350 लोगों के साथ साथियों समेत शहीद कर दिया था और वो बड़े एंटी इंडिया आदमी थे। मैं मस्तूम गया हुआ हूँ कई दफ़ा और मुझे इल्म है ये एक बड़ा बैरन इलाका है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही आप कोयटा की साइड से आते हैं, ऊपर पहाड़ से जैसे नीचे उतरते हैं, फिर एक बड़ी वादी है और वहाँ एक ट्रबल एरिया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूर दूर लोगों के घर हैं और दुश्वार गुजार पहाड़ी घाटियां हैं, तो वो उसके अंदर आपको पता नहीं चलता। दहशतगर्द आपको पता है छोटी छोटी टोलियों में रहते हैं। दूसरी जानिब खारान का इलाका है। खारान का इलाका जो है अगेन वो भी एक, क्योंकि बिल्कुल बलोच बेल्ट है, ये दोनों बलोच बेल्ट समझे जाते हैं और वो इतने मतलब मीलों मील तक लक्को दक जो है इलाका होता है कि आपको वहां मतलब वैसे तो कुछ नहीं नजर आता, लेकिन पहाड़ों में या गारों के अंदर या नीचे कारेज सिस्टम भी कई जगह पे बना हुआ था। कारेज सिस्टम आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर का एक सिस्टम रखा गया था। अब तो खैर वो खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटैक्ट है। तो ये चीजों को, उन जगह को हाइड आउट्स जो है वो बनाते हैं। लेकिन इसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने क्या किया? अफवाज पाकिस्तान ने ये किया कि उस टाइम पे बकायदा एक डिविजनल हेडक्वार्टर जो था, जो डिफ था, वो कोयटा से शहर से मूव करा के, मैं नाम भी जानता हूं लेकिन मैं उसको ना ही बताऊं तो बेहतर है, तो वो एक इन्फेंट्री डिवीजन जो था वो मूव करके जो है बकायदा खुलदार लाया गया और फिर इसके अंदर ऑपरेशन किए गए। फिर ये एक और डिवीजन है जो कि हमारे जो ISI के सरबराह हैं अभी मौजूदा, उन्होंने भी कमांड किया हुआ है, 16 डिवीजन कहलाया जाता है बलूचिस्तान के अंदर, वो कोयटा के अंदर है। लेकिन अब इनके फॉरवर्ड इलाके मौजूद हैं और काफी हद तक चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। फिर FC के ऊपर क्या किया गया कि FC नॉर्थ और FC साउथ बनाई गई। पहले एक FC थी, जब हमारे साबिक DG ISI जनरल नदीम अंजुम वहां बलूचिस्तान में थे तो उस टाइम पे एक ही FC पूरे बलूचिस्तान को लुक आफ्टर करती थी। लेकिन हालात की नजाकत को जानते हुए FC को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और एक नॉर्थ और साउथ का बना दिया गया। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि गवर्नमेंटल मैयत है। इसके अलावा जो थे B एरियाज जिनके ऊपर पहले फौज जो मतलब पुलिस नहीं जा सकती थी और वहां लेवी डिप्लॉय थी, क्योंकि वहां एक लेवी फोर्स है, एक उसके बाद पुलिस है और उसके बाद फिर FC है और FC के बाद फौज आती है। तो अब जो लेवी फोर्स थी ये B एरिया में जाती थी। पहले 93% इलाका जो था वो B इलाका था बलूचिस्तान का और सिर्फ 7% जो था वो A एरिया था। अब उसको घटा के जो है काफी हद तक जो है उसमें कमी लाई गई है और ज्यादा A एरिया जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है कि काम हो रहा है। इससे पहले जो है वो 9 अदालतें थी टोटल एंटी टेररिस्ट के लिए, यानी कि जो टेररिज्म के हवाले से जो बातचीत होती थी उसको अदालतों के अंदर सिर्फ 9 अदालतें थी जो कि बहुत कम थी। अब उनको भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है माजी के अंदर वहां बड़े नामवर जो चीफ जस्टिस साहिबान थे उनको भी शहादत उनको दी गई थी और फिर उसकी वजह यही थी कि वो टेररिस्ट जितने भी कोर्ट्स थे उनके अंदर वो किरदार अदा करते रहे। जाहिर है इसकी वजह से एक बहुत बड़ा
बड़ा मसला है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का। जब तक कि वो वहाँ बैठते हैं तो साथ तो उनके गार्ड चलते हैं, लेकिन जब उनकी पोस्टिंग हो जाती है या उनके बीवी बच्चे या रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब कोई जनाजा कोई खुशी के मौके के ऊपर, तो मुश्किलात में इजाफा होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्टर्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो हमें ये नज़र आता है कि बलूचिस्तान जो है वो एक मुश्किल रास्ता हो गया। अभी मैंने 4 दिन पहले मुज़म्मिल साहब मैंने एक अपना व्लॉग भी किया था और उसके अंदर मैंने गुजारिशात की थी कि जैसे ही ईरान के साथ तिजारत का बेहतरी और बॉर्डर के ऊपर बेहतरी आने लगेगी, अचानक बलूचिस्तान एक दफ़ा फिर गर्म हो जाएगा। और वही हो रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया एक दफ़ा फिर एक्टिव हुआ है, वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। इससे पहले जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, या फिर आप देख लीजिए कि जब ये चमन फाटक का वाक़या हुआ था, दोनों इंतहाई अफसोसनाक थे। भारत बराह रास्त मुलव्विस था और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके स्लीपर सेल्स वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है मुज़म्मिल साहब और सना साहिबा, वो ये है कि वहाँ के जो बलूचिस्तान के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, अदर देन द चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब, आपको वो कोई बोलता नजर नहीं आएगा। अवाम के जो मुश्किलात है उनका मदावा करते नजर नहीं आते। दिन के वक्त जो है वो कहते हैं कि जनाब ये तो आपको पता है दफातर में बैठते हैं और रेड जोन क्वेटा से बाहर नहीं निकलते। नतीजा ये होता है कि पूरा बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम पे इन लोगों की जो प्रेजेंस है वो घट रही है और शाम को ये इनके ताल्लुकात हैं। मैं बिल्कुल इसमें मुझे कोई आर नहीं है कहते हुए कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका बीएलए के साथ बराह रास्त नहीं तो कम से कम इनडायरेक्ट कनेक्शन जरूर है, क्योंकि बीएलए इन्हीं लोगों से भत्ता लेती है, इन्हीं से पैसे लेती है, इन्हीं से कहती है कि जनाब तुम अपना कारोबार करते हो दुबईयों में और जाके कतर के अंदर और इंग्लैंड के अंदर तुम्हारी जायदादें हैं, तो हमारा हिस्सा किधर है। इस वजह से ये दिन के वक्त जो है ये आप समझें कि हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं और शाम को ये उनके सामने एक हाथ बांधे। अब एक और मौजू पर भी आपसे बात करनी है अब्दुल्ला साहब। आज अमेरिका और ईरान में दोबारा कशीदगी हुई आबनाए हुर्मस पर। अमेरिका ने सिर्क एक आइलैंड है अमेरिका का, ईरान का, उस पर बमबारी की है और ईरान कहते हैं ईरान ने एक तजारती जहाज़ पर एक दिन पहले ड्रोन मारे थे सिंगापुर के। ये कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है या कंट्रोल में रहेगी? ये कशीदगी नहीं बढ़ेगी, नहीं, मेरा ख्याल है कि कंट्रोल में ही रहेगी। और ये जो दो बातें हुई हैं इन दोनों के जरा पस मंजरनामा में चले जाएं। ईरान ने 3 दिन पहले ये कहा था कि आप कोई भी जहाज आबनाए हुर्मुज से जो गुजरेगा वो हमारे बताए हुए रास्ते और हमें इतला करके देगा ताकि हम उसको सेफ पैकेज बताएंगे। और फिर वो क्योंकि माइंस लगी हुई हैं, आपको तो पता है बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी मिजेट सबमरीन्स वहाँ मौजूद हैं, उनकी नेवल डिप्लॉयमेंट्स हैं और ये वॉर डेज की डिप्लॉयमेंट्स, और क्योंकि वॉर डेज अभी तक ईरान की नजर में ओवर नहीं हुए तो इसलिए जो ईरान ने उनको जगह बताई थी उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। ईरान ने रिटेलिएट किया और ये बता दिया था उन्होंने कि जो जहाज इससे हट के जाएगा हम उसको निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने उनके ऊपर जो है वो हमला किया, अब वो आगे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये चीजें जो छोटे मोटे स्कर्मिशेस हैं ये जारी रहेंगे। ये डिफेंस का भी बयान आया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का भी बयान आया, लेकिन ये स्कर्मिश जारी रहेंगे। लेकिन क्योंकि एक इंटरनेशनल दुनिया का बहुत बड़ा दबाव है और जो मुआशी हालात हैं वो इतने संगीन हो गए हैं यूरोप समेत पूरी दुनिया के और ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक के कि उनकी बस हो गई है। इस वजह से अमेरिका का जहां इजराइल के साथ एक बहुत अच्छा कुर्बत मौजूद है, वहीं उसको बहुत ज़्यादा जो अरब दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो दे कैन नॉट जस्ट ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ द यूएई और कतर या बहरीन, कुवैत, ये तमाम जो खलीजी ममालिक हैं इनके इंटरेस्ट को वो ओवरलुक नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल है कि ये मामला बेहतर हो जाएंगे। खामनाई साहब की आखिरी रसूमात 2 जुलाई से शुरू हो रही हैं, आपको लगता है पुरअमन रहेंगी और उस दुनिया के दीगर ममालिक के लोग भी वहाँ जाएंगे? देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान के भी जाएंगे और दुनिया के भी ममालिक के लोग जाना चाहेंगे। और मुझे आपको भी, आप तो बाखबर आदमी हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से ईरान की लीडरशिप ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था स्विट्जरलैंड में अमेरिकन का जो वहाँ वफ्द आया था। और जाहिर है उसके ऊपर उन्होंने तस्वीर भी नहीं खिंचवाई थी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने जो शोहदा का खून है वो उनको अभी याद है और होना भी चाहिए। दूसरी जानिब ईरान जो है वो आपको मालूम है वो एक गैरतमंद कौम है, वो ऐसे पे पीछे नहीं हटती। जब वहाँ कौन सा इलाका है मुझे ज़हन में, जब कासिम सुलेमानी साहब का सालाना था
तो उस टाइम पे फिर वहां धमाका हो गया था और धमाके के बावजूद 350 के करीब शहादतें हुई थी और उसके ऊपर भी लोग वहां खड़े रहे थे। तो दिस वाज समथिंग ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब जो 2 तारीख से शुरू हो रही है और फिर ये कुम शहर के अंदर और दीगर जगह के ऊपर मुख्तलिफ, यानी कि वो इसको एक पूरा एक मंजरनामा बना रहे हैं और वो उस कौम को एक जिसको कहते हैं ना मोटिवेट भी कर रहे हैं, वो एक उस शहादत को और जो तमाम जो दीगर शुहदा हैं उनको खिराज अकीदत भी पेश करने के लिए ये एक पूरा इवेंट प्लान किया जा रहा है और ये मुहर्रमुल हराम के अंदर किया जा रहा है, जिसका मैंने पहले भी आपके भी एक प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी। तो ये एक इवेंट होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इजराइल और कोशिश करेगा कि इस इवेंट में रख ना डाले, अमेरिका नहीं करेगा, ये मुझे अंदाजा है, क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, फिर ये जंग रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। इसलिए इजराइल ये कोशिश करेगा। बहरहाल सिक्योरिटी लूप्स वहाँ लूप होल तो मौजूद हैं। आपको याद है इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई थी वो दुनिया की सबसे टफेस्ट सिक्योरिटी के अंदर जो है ब्रीच हो गया था। तो ईरान के अंदर आपको भी मालूम है, हम भी जानते हैं कि उनके पास जो अंदर के घर के भेदी हैं वो तो लंका ढाते हैं और माजी में कई ऐसे मौके हैं जहां उनके घर के भेदियों ने प्रोग्राम खराब किया। तो अल्लाह खैर करे, बट इफ इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट, तो वो किरमान शहर मुझे याद आ गया, किरमान शहर के अंदर हुआ था जो कि इराक का बॉर्डर था। तो अगर को खुदा ना खास्ता किरमान शहर को रिपीट करने की कोशिश की जाती है तो देन आई एम सॉरी सर, देन इट इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस आर गोइंग टू बी हॉरिफिक। इस्लामी आपको लगता है गल्फ ममालिक के लोग जाएंगे के सरकारी वफूद जाएंगे या गल्फ ममालिक के सरकारी वफूद नहीं जाएंगे? मुझे लगता है जी उनमें से सारे गल्फ के ममालिक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ के साथ तो मेरे ख्याल में अब काफ़ी दूरियां पैदा हो गई हैं, ख़ासतौर पे यूएई के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि गल्फ ममालिक के जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ज़ाहिर है अब चाहेगा कि वो एक्सेस करें तेहरान को थ्रू गल्फ कंट्रीज, जिस तरह से वो पाकिस्तान से भी कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान का तो एक अपना मौक़िफ़ है पहले दिन से मेरा ख्याल है, लेकिन गल्फ ममालिक को भी एक मौका चाहिए ना, बहाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले तो काफ़ी ईरान को आड़े हाथों लिया था और सपोर्ट तो नहीं की थी। काश के वो उस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरह इतना ही कह देते कि जो ईरान के ऊपर हमले हैं वो, सॉरी सऊदी अरब ने नहीं कहा था, तो ईरान के ऊपर जो ईरान ने हमले किए हैं गल्फ स्टेट्स के ऊपर वो बुरे किए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। पाकिस्तान ने भी ये कहा, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं वो भी गलत हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज ने ये बात नहीं की, जिससे जाहिर है एक तशनगी आ गई है। तो अब ये तो जाते जाते जाएगी। तो इट इज अ गोल्डन opportunity and I think that the Gulf countries are going to avail this golden opportunity. Let's see. लेकिन सूरत हाल तो हमने अब्दुल्ला साहब देखी है कि जो ईरान टेबल पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन अपने सख्त मौक़िफ़ के साथ। अगर सूरत हाल हमें लगता है कि हालात कशीदा होते हैं और जंग की तरफ फिर से हालात जाते हैं, तो फिर तो ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत है। जी बिल्कुल, देखें वो अगर टेबल पे बैठे में हैं तो फिर किसी वजह से बैठे हैं ना, वरना आप देखें ना कि एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री, एक बहुत ही कमजोर मुल्क, उसको 2 न्यूक्लियर पावरें मिलके जो है वो मारें, तो 40 दिन की जंग लड़ें और उसके बाद वो खड़े रहें, तो कुछ तो है ना उस कौम में, ऐसे तो बात नहीं है। तो फिर दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल है कि इस सब के अंदर गल्फ के अंदर अगर लड़ाई हुई तो इस बार इतनी भयानक हो सकती है कि जिसका कोई शायद तस्वर ना कर सके। तीसरी चीज जो है, क्योंकि दुनिया फिर एक ऐसी तबाही की तरफ चली जाएगी जिसमें वो ना चाहते हुए भी तबाही का हिस्सा बन जाएगी। और जैसे वेनेजुएला का जलजला जो है उसमें बहुत अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन वो लुकमा अजल बन गए, अल्लाह माफी दे, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। दूसरी जानिब जो मैं बलूचिस्तान के ऊपर जरूर वो बात कर रहा था, देखें सबसे जो अहम बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी लीडरशिप है वो अदम दिलचस्पी ले रही है। ये बिल्कुल एक रियलिटी है। मतलब जब भी मुजम्मिल साहब इज वेरी काइंड टू मी, आप लोग मुझसे आप इंटरव्यू पे बात करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि बलूचिस्तान का कोई सेनेटर, कोई एमएनए, एमपीए आपके प्रोग्राम में आने से क्यों कतराता है? क्या वजह है कि वो बलूचिस्तान के अंदर बीएलए को खुल के तनकीद का निशाना नहीं बनाता? क्या वजह है कि वो डीवाईसी के बयानिए को मुस्तरद करते हुए एक नया पाकिस्तान का जो नजरिया है, जो कि खास तौर पे पैगाम पाकिस्तान है, उसको लेके क्यों नहीं आगे बढ़ा? क्या ये वजूहात है। ठीक, अगले किसी प्रोग्राम में करते हैं, आज वक्त की कमी है, अगले किसी प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, ब्रेक लेनी आया चूंकि हमें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब ब्रेक के बाद हमें कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ शुरू।
वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी पैगाम अमन कमेटी ने मुल्क भर के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, ज़ाकिरीन, मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि खैर आफियत से जो है वो आशूरा गुजर गया। कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सानिया जो तकलीफ़ दे वो रूनुमा नहीं हुआ। खैर आफियत से मुहर्रम जो है आशूरा गुजरा। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद करीम खान साहब, रुकन कौमी पैगाम अमन कमेटी, हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। मुफ्ती साहब, आशूरा नहायत मजहबी हम आहंगी से गुजर गया, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, अमन और अमान कायम रहा, दीनी हम आहंगी भी कायम रही। ये आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका, हम का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आशूरा मुहर्रमुल हराम जिस तरह अमन और अमान के साथ गुजरा है, इस पे पूरी कौम, उलमा, अवाम, रियासती इदारे और मैं मीडिया का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कामयाबी यकीनन जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मार्का हक में कौम को कामयाबी अता फरमाई, तो ये उसी के समरात हैं। बड़े सालों के बाद, शायद दहाइयों के बाद, ये पहला मुहर्रमुल हराम गुजरा है जिसमें किसी किस्म का कोई नापसंदीदा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। इसमें मैं समझता हूँ हमारे रियासती इदारों, अफवाज पाकिस्तान और क़यामे अमन कमेटी जो है, ये हमारे सारे जो अरकान हैं, मेंबरान हैं, पिछले 2 महीने से, रमज़ान से हम शुरू हो चुके थे और तकरीबन 25 प्रोग्राम मैंने भी फाकुल मदारस रिजविया के तहत पूरे पाकिस्तान में किया है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है इसमें अल्लाह तबारक व तआला के करम और फजल के बाद रियासती इदारे, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, वज़ीर आज़म का विजन और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर साहब का विजन जो था, उसको लेकर ये पूरी पैगाम अमन कमेटी जो है पूरे पाकिस्तान में, इसने तमाम सूबों के दौरे किए, ख़ास तौर पर पंजाब में तमाम डिवीज़न और ज़िला लेवल पर जो काम किया, तो मेरा ख्याल है उससे अवाम का शऊर भी बुलंद हुआ है और जो मजहबी हल्के हैं हमारे, ख़ास तौर पर उलमाए किराम, वाइज़ीन हमारे, इसी तरह जो मजालिस का और जुलूसों का एहतमाम करने वाले मुंतज़मीन हैं, उन तमाम ने भी बड़ा तावन किया है। मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह अवाम का, उलमा का, वाइज़ीन का, ज़ाकिरीन का, सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और ये तसलसल है, अल्लाह तबारक व तआला ने मार्का हक के बाद जिस तरह हमें हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अता फरमाई, फिर हमें आलमी अमन कायम करने के लिए पिछले 3 महीने से जिस तरह अमेरिका के दरमियान और ईरान के दरमियान और दूसरे अरब मालिक जो हैं उनके दरमियान जो इत्तेहाद अमन कायम किया, तो उसके समरात यकीनन ये पाकिस्तान के जो निचला तबका था, गांव मोहल्लों तक और जुलूसों तक और उलमा तक, ये सब ने बहसीते मुआशरे के, बहसीते कौम के जो इल्म की सतह बुलंद हुई, शऊर की सतह बुलंद हुई, ये सब उसका नतीजा है जिस पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। ये सारा साल ये मजहबी हम आहंगी रहनी चाहिए, ये रवादारी सारा साल रहनी चाहिए, सिर्फ मुहर्रम में क्यों नहीं? इंशाअल्लाह ये जो कौमी पैगाम अमन कमेटी है, ये पूरा साल काम कर रही है। इसको अभी मार्ज वजूद में आए मेरे ख्याल 6 माह हुए हैं। इस दौरान रमजानुल मुबारक में हमने बलूचिस्तान का दौरा किया, उससे पहले शाबानुल मुअज़्ज़म में KPK का दौरा किया, फिर कश्मीर के दौरे पर गए, फिर इस तरह ये पंजाब में और सिंध के जो सूरत हाल उस पर। तो ये इंशाल्लाह अब आपको पूरा साल नजर आएगा, पूरा साल ही इंशाल्लाह ये बैनुल मसालिक हम आहंगी भी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी भी इंशाल्लाह इस पर रूट लेवल पर काम हो रहा है। और ये चूंकि कमेटी ऐसी है जिसमें तमाम मसालिक के भी जय्यद उलमाए किराम और कायदीन शामिल हैं और तमाम मज़ाहिब के भी, इसमें हमारे ईसाई जो मजहब है उसके नुमाइंदे भी हैं, सिख के हैं, हिंदू मत के हैं, सारे मज़ाहिब भी और सारे मसालिक भी। और चूंकि ये एक बड़ा इवेंट आया था, तो इस पर हम तमाम के लिए ज़ाहिर है ये इब्तदाई तौर पर जितना काम किया था, तो ये एक प्रेसिडेंट सेट होना था। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी आप देखेंगे पूरे मुल्क में यही सूरत हाल रहेगी
अवाम भी, और हुकूमत मुफ्ती की साहब भी, तवातुर से रियासती इदारे भी। सेमिनार्स भी, मुफ्ती साहब तवातुर से सेमिनार्स होने चाहिए, इस हवाले से जुलूस निकाले जाने चाहिए और जो तफरुका है वो ख़त्म करने के लिए हंगामी बुनियादों पर जो है वो काम होना चाहिए। इस पर आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल। आप देखेंगे पिछले 6 महीने से हम हंगामी बुनियादों पर ही, जिस तरह के पैगाम पाकिस्तान एक ऐसा हमारे सामने बयानिया आ गया रियासत का, जिस पर तकरीबन 5000 उलमाए किराम के दस्तखत हैं, मुफ्तियान किराम के हमारे दस्तखत हैं, और इस वक्त उसको फॉलो किया जा रहा है हर जगह पर। और उसका ज़ाहिर है बुनियादी उसूल है कि अपने मसलक को छोड़ो नहीं और दूसरे के मसलक और मजहब को छेड़ो नहीं। वेरी आप गुड। अपना अमन वाला, रवादारी वाला, हम आहंगी वाला मौक़िफ़ जो, ये सब की तालीमात मुश्तरका हैं। कोई मजहब हो, कोई मसलक हो, ये बुनियाद अमन, रवादारी, आपस में प्यार मोहब्बत, मेल मिलाप, बर्दाश्त और दूसरे के साथ हुस्न सलूक, ये बुनियाद है एक कौम बनने के लिए भी हमें। तो इंशाल्लाह ये इस वक्त 78 सालों में पहली दफा ये सूरत सामने आई है, तो इसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे उसमें मार्का हक की भी बरकत हैं और कौम का भी शऊर ठीक हो बुलंद गया। हुआ है। मैं ये समझता हूँ चले जी, इसमें इंशाल्लाह बहुत दुआ बड़ा कर सकते हैं क्रेडिट जी। जो हमारे मजहबी उलमा को। जी बहुत बिल्कुल, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।